हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਟੌਪਿਕ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਐਡੀ ਕਰੰਟਸ। ਦੇਖੋ ਲਾਸਟ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੰਡਿਊਸਡ ਕਰੰਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਮੇਨ ਜੋ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿੰਕਡ ਜੇ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫਲਕਸ ਚੇਂਜ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ EMF ਇੰਡਿਊਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫੈਰਾਡੇ ਲਾਜ਼ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਲੈਂਜ਼ਸ ਲਾਅ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਕੁਝ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਇੱਥੇ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕੰਡਕਟਰ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਸ ਕੰਡਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿੰਕਡ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫਲਕਸ ਚੇਂਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੰਟ ਇੰਡਿਊਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕਰੰਟ ਇੱਕ ਕੋਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਇੰਡਿਊਸ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਨ ਦਾ ਬਲਕ ਆਫ ਕੰਡਕਟਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਨਸਾਈਡ ਦਾ ਕੰਡਕਟਰ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਲੇਟ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਇਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਪੂਰੀ ਸ਼ੀਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲਿੰਕਡ ਜਦੋਂ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫਲਕਸ ਚੇਂਜ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਸ਼ੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੰਟ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਸ਼ੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੰਟ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਲੋ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਪੂਰੀ ਸ਼ੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰੰਟਸ ਫਲੋ ਕਰਦੇ ਆ ਸਰਕਲਸ ਬਣ ਕੇ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੋਨ ਥਰੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਤਾਂ ਵੇਵਸ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਬਾਹਰ ਵੱਲ ਨੂੰ, ਸਰਕਲਸ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਰਕਲਸ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਡੀਜ਼ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੋਨ ਥਰੋ ਕਰਦੇ ਨਾ ਤਾਂ ਜੋ ਸ਼ੇਪ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਐਡੀਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਇਸੇ ਤੋਂ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਪਿਆ ਐਡੀ ਕਰੰਟਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਆਪਣਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਐਡੀ ਕਰੰਟਸ। ਤਾਂ ਸੇਮ ਹੈ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫਲਕਸ ਕੰਡਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿੰਕਡ ਚੇਂਜ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ EMF ਇੰਡਿਊਸ ਹੋਏਗੀ। ਅਤੇ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕੀ ਹੈ, ਇਨ ਦਾ ਬਲਕ ਆਫ ਦਾ ਕੰਡਕਟਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿ ਵੈਨ ਬਲਕ ਪੀਸਿਸ ਆਫ ਕੰਡਕਟਰ ਆਰ ਸਬਜੈਕਟਡ ਟੂ ਦਾ ਚੇਂਜਿੰਗ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫਲਕਸ, ਇੰਡਿਊਸਡ ਕਰੰਟਸ ਆਰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਡ। ਕਿ ਬਲਕ ਆਫ ਦਾ ਕੰਡਕਟਰ, ਇਨਸਾਈਡ ਦਾ ਕੰਡਕਟਰ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਡੀ ਕਰੰਟਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਐਡੀਜ਼ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਦੇਅਰ ਫਲੋ ਪੈਟਰਨਸ ਰਿਜ਼ੈਂਬਲ ਸਵਰਲਿੰਗ ਐਡੀਜ਼ ਇਨ ਦਾ ਵਾਟਰ। ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਟੋਨ ਥਰੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸ ਨੇ ਡਿਸਕਵਰ ਕੀਤੇ ਸੀ ਜੀ, ਤਾਂ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਸੀ ਫੋਕਾਲਟ। ਥੀਸ ਕਰੰਟਸ ਆਰ ਕਾਲਡ ਐਡੀ ਕਰੰਟਸ। ਤਾਂ ਇਹ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਐਡੀ ਕਰੰਟਸ ਦੀ, ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿੰਕਡ ਕਿ ਇਹ ਪੋਲ ਪੀਸਿਸ ਹੈ, ਇਹ ਨਾਰਥ ਸਾਈਡ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਊਥ ਸਾਈਡ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀਆਂ ਡਾਇਗਰਾਮਸ ਬਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, 3 ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਵਿਊ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਪਲ ਡਾਇਗਰਾਮ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਕੰਪਲੀਕੇਟਡ, ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਦੇਖੋ 3 ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਵਿਊ ਨਹੀਂ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ ਸਪੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਬੁੱਕ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਿੰਪਲ ਡਾਇਗਰਾਮ ਕਿ ਇਹ ਨਾਰਥ ਪੋਲ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਊਥ ਪੋਲ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਪਲੇਟ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਔਸੀਲੇਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿੰਪਲ ਡਾਇਗਰਾਮ ਵੀ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੀ ਇੱਥੇ। ਤਾਂ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੈਗਨੇਟ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਗਨੇਟ ਦੇ ਪੋਲ ਪੀਸਿਸ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਲੇਟ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਂਡੂਲਮ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਔਸੀਲੇਟ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬਿਟਵੀਨ ਦਾ ਸਟਰੋਂਗ ਮੈਗਨੇਟਸ। ਅਤੇ ਇਹ ਪਲੇਟ ਕਾਹਦੀ ਬਣੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਕੰਡਕਟਰ ਹੈ, ਇਹ ਕਾਪਰ ਦੀ ਪਲੇਟ ਹੈ ਜੀ। ਕਾਪਰ ਪਲੇਟ is allowed to swing like a pendulum between the pole pieces of strong magnet, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਸਵਿੰਗ ਕਰਨਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਮੈਗਨੇਟ ਜਦੋਂ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਮੋਸ਼ਨ ਡੈਂਪਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੋਸ਼ਨ, ਇਟ ਇਜ਼ ਫਾਊਂਡ ਦੈਟ ਇਟਸ ਮੋਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਡੈਂਪਡ ਐਂਡ ਲਿਟਲ ਵਾਈਲ ਪਲੇਟ ਕਮਸ ਟੂ ਹਾਲਟ, ਰੁਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਹਾਲਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਟੋਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਉਸ ਦਾ ਮੋਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਐਡੀ ਕਰੰਟਸ ਡਿਵੈਲਪ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਐਡੀ ਕਰੰਟਸ ਇੰਡਿਊਸਡ ਕਰੰਟਸ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੰਡਿਊਸਡ ਕਰੰਟ ਕਿਉਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਮੋਸ਼ਨ ਕਰਕੇ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਪੋਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਲੇਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਲਦੀ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਮੈਗਨੇਟ ਨਹੀਂ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿਰ ਔਸੀਲੇਟ ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਗਨੇਟ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਮੋਸ਼ਨ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਐਡੀ ਕਰੰਟਸ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇੰਡਿਊਸਡ ਕਰੰਟ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਮੋਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੀ ਲੈਂਜ਼ਸ ਲਾਅ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡਿਊਸਡ ਕਰੰਟ ਹੈ, ਜੋ ਇੰਡਿਊਸਡ EMF ਹੈ, ਉਹਦੀ ਨੇਚਰ ਅਪੋਜ਼ਿੰਗ ਹੋਏਗੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੁਛ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਰੁਕ ਜਾਏਗੀ।
ठीक है, क्योंकि मैग्नैटिक फ्लक्स उसदे नाल लिंक्ड जो है लगातार चेंज हो रही है, ठीक है ना। तो उहदे विच एडी करंट्स डिवेलप होंदे है तो वो उहदे मोशन नूं की करदे है, अपोज करदे है। द मैग्नैटिक फ्लक्स एसोसीएटेड विद प्लेट्स कीप ऑन चेंजिंग, द फ्लक्स चेंज इंड्यूस एडी करंट्स इन द प्लेट। हुण देखो जे एक अंदर वाल जाती है इस पासे वाल, तो इहदे विच इस डायरैक्शन च करंट इंड्यूस हो रहे हैं, मतलब उहदे अंदर वाल जाण वाले मोशन नूं अपोज करना है। तो जे जदों ये सेंटर च पहुँच जाती है उत्थों बाहर वाल जाण लगदी है तो उहदे विच ओपोजिट डायरैक्शन दे विच करंट इंड्यूस हो रहे हैं, मतलब उन्हें बाहर जाण नूं रोकना है, मतलब सारा मोशन ही टोटली डैम्प्ड होएगा, ठीक है ना। जदों वो इधरले पासे आएगी तो उनका मोशन अपोज होएगा, बई अंदर आन नूं रुकावट होएगी, रजिस्टेंस होएगा। तो जदों वो इधरों बाहर जाएगी फिर उनके विच रजिस्टेंस होएगा। सिमिलरली ऑन दिस साइड, ठीक है। द डायरेक्शन ऑफ एडी करंट्स आर ऑपोजिट व्हेन प्लेट स्विंग्स इनटू द रीजन बिटवीन द प्लेट्स एंड व्हेन स्विंग्स आउट ऑफ द रीजन, ठीक है। तो कुछ एक्सपैरीमेंटल डिटेल्स सीगियां, कई बार क्वेश्चन आ जाता जी व्हाट आर एडी करंट्स एंड डिस्कस एन एक्सपैरीमेंट टू डिमोनस्ट्रेट एडी करंट्स। कि डैमोनस्ट्रेशन लई ये असी मैथड यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। एक चीज़ होर की गई एडी करंट्स नूं रिड्यूस करन लई कि इस प्लेट दे विच ना कट लगाते, देखो स्लॉट्स कहते हैं जी इनू, प्लेट नूं कट दिता गया, देखो ठीक है भी प्लेट का बहुत एरिया ही खत्म कर दिता गया, प्लेट का एरिया रिड्यूस कर दिता गया, विचों विचों प्लेट दे विच कट लगाते। तो हुण इहदे नाल की होया कि जदों इहदे विच असीं स्लॉट्स लगाते तो इहदे नाल एरिया रिड्यूस होने करके इहदे विच एडी करंट्स भी रिड्यूस हो गए, ठीक है ना। तो जे एडी करंट्स रिड्यूस हो गए तो इहदा मतलब उनदे विच जो ओपोजिशन सीगी वो भी घट गई। जिहड़ी ये प्लेट है जिस दे विच स्लॉट्स लगे हुए है वो इहदे नालों ज़्यादा टाइम ऑसिलेट करेगी, ठीक है। ये देखो जी, इफ रेक्टेंगुलर स्लॉट्स आर मेड in the copper plate as shown, area available to flow of eddy currents is less, ठीक है। तो उस दे नाल डैंपिंग रिड्यूस हो जाएगी तो एडी करंट्स रिड्यूस हो जाएंगे। तो ये सैकेंड एक्सपैरीमेंट नूं असीं एक्सप्लेन कर रहे हैं इत्थे, जो इत्थे कीता जा रहा है। हुण ये चीज़ जिहड़ी जी बड़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार पुछ लिया जाता है जी हाउ टू रिड्यूस एडी करंट्स, ठीक है। तो एडी करंट्स देखो जी एक तरीके दे ना साडे वास्ते अनवांटेड एनर्जी का लॉस है, क्योंकि एडी करंट्स पैदा होणगे उहदे करके हीट प्रोड्यूस होएगी, तो हीट का लॉस होएगा, एनर्जी का लॉस होएगा। ट्रांसफार्मर दे विच हो रहा जी इस तरह, ट्रांसफार्मर दे विच कोर है आयरन की, तो उहदे विच एडी करंट्स प्रोड्यूस होंदे है। तो जदों उहदे विच एडी करंट्स प्रोड्यूस होंदे तो हीट प्रोड्यूस होंदी है जी, ठीक है। कोर ऑफ ट्रांसफार्मर दे विच, मोटर्स दे विच तो ये प्रॉब्लम आती है, ठीक है। तो एडी करंट्स नूं किवें रिड्यूस किया जाता है जी। पहलां तो एडी करंट्स दे नुकसान की है कि एडी करंट्स are undesirable since they heat up the core and dissipate electric energy in the form of heat। तो ये लॉस है जी जो एडी करंट्स करके होंदा है, ठीक है। फिर क्वेश्चन पूछा जाता जी हाउ एडी करंट्स कैन बी मिनीमाइज्ड। तो इहदे विच आंसर दिता गया जी कि एडी करंट्स आर मिनीमाइज्ड बाय यूजिंग लैमीनेशन ऑफ मैटल टू मेक मैटल कोर। कि जिहड़ी कोर बनती है ना, कोर नूं पार्ट्स दे विच बनाया जाता है कि शीट्स नूं लैमीनेट करके एक दूजे दे पैरल लगाया जाता है कि जो एडी करंट्स डिवेलप होण एक पर्टिकुलर शीट दे विच होण, सारे पूरी मैटल कोर दे विच ना होण, ठीक है। तो उहदे नाल एडी करंट्स काफ़ी हद तक रिड्यूस हो जाते हैं, तो उहदे नाल जो लॉस है वो भी काफ़ी घट जाता है, ठीक है। द लैमीनेशंस आर सैपरेटेड बाय एन इंसुलेटिंग मटीरियल लाइक लैकर, ठीक है। तो ये लाख होंदी है जी, तुसीं लाख बारे सुनिया होएगा। तो इंसुलेटिंग मटीरियल है, तुसीं कोई होर इंसुलेटिंग मटीरियल भी यूज़ कर सकते हो। तो इंसुलेशन लई असीं इत्थे लाख यूज़ कर रहे हैं, लैकर। तो डायग्राम देखो जी कितनी जबरदस्त डायग्राम बनाई है कि इहदे विच जिहड़े करंट्स इंड्यूस हो रहे हैं ना वो भी जूम करके दिखाया जी इस प्लेट दे विच, है ना। बट तुहानूं ये करन दी जरूरत नहीं है, तुसीं सिर्फ स्लॉट्स दिखाने हैं जी, ठीक है। उपरली डायग्राम वांगू तुसीं सिंपल डायग्राम बना सकते हो जिस तरह मैं बनाई सी कि उस तरह नॉर्थ साउथ तो विचाले प्लेट दे विच स्लॉट्स लगा सकते हो, बस कट लगा सकते हो मतलब,
ठीक है। जो क्वेश्चंस बन रहे हैं जी वो मैं तुहानूं दसदा जी। इत्थे ये क्वेश्चन है जी हाउ टू मिनीमाइज एडी करंट्स, क्वेश्चन आ जाता है हाउ टू मिनीमाइज एडी करंट्स, तो उनका ये आंसर है जी। तो तुसीं क्वेश्चन नोट कर लिया जी, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वट आर अनडिजायरेबल इफैक्ट ऑफ एडी करंट्स, तो वो ये है जी, ठीक है। जे क्वेश्चन पूछा जाए जी कि डिस्कस एन एक्सपैरीमेंट टू डिमोनस्ट्रेट एडी करंट्स, तो तुसीं ये डिस्कस करना है जी, ठीक है। जी ये डायग्राम है तो इस दे नाल एक क्वेश्चन है, ठीक है जी, इत्थों तक क्लीयर है। तो ये डेफिनेशन है जी ऊपर डेफिनेशन, उस तो अगे एक्सपैरीमेंट टू डिमोनस्ट्रेट एडी करंट्स, ठीक है। हाउ एडी करंट्स आर रिड्यूस्ड, तो ये है जी भी एडी करंट्स को मिनीमाइज किस तरह किया जा सकता है जी। तो वट आर द अनडिजायरेबल इफैक्ट्स, तो एनर्जी लॉस है, तो क्वेश्चन है जी, ठीक है। हुण एडी करंट्स ते बेस्ड एक होर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, वो है जी एप्लीकेशंस ऑफ एडी करंट्स। देखो जिस चीज़ का लॉस है उस चीज़ दी एप्लीकेशंस भी है। ये ह्यूमन माइंड ते है जी कि असीं इसनूं किस तरह यूज़ करते हैं। साडा ब्रेन जिहड़ा ना वो किस तरह काम करता है, उसनूं सिर्फ नैगेटिवली ही लैंदा है कि असीं उस दे विच कुछ पॉजिटिव भी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। लाइफ दे विच भी इस तरह ही होंदा है कि कोई प्रॉब्लम आती है तो असीं सिर्फ उसनूं एक प्रॉब्लम दे वांगू देखते हैं या उसनूं एक अपॉर्चुनिटी दे वांगू भी देखते हैं, ठीक है ना। तो ये साडी एक देखने का नज़रिया है कि असीं उहदे विच नैगेटिविटी देख रहे हैं या पॉजिटिविटी देख रहे हैं। देखो जो उहदे करके लॉस हो रहा सी वो असीं रिड्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं, काफ़ी हद तक रिड्यूस कर लिया, ठीक है। बट हुण इस दी एप्लीकेशंस जे तुसीं पढ़ोगे तो तुसीं वाकई कहोगे जी कि जो साइंटिस्ट वर्क करते हैं, जो सोचते हैं, जो काम किया गया है वो वाकई अमेजिंग है, हैरान करने वाले है, ठीक है। तो फर्स्ट एप्लीकेशन है जी मैग्नेटिक ब्रेक्स इन ट्रेनस, कि ट्रेन दे विच ब्रेक्स होंदियां जी, मैग्नेटिक ब्रेक्स बेस्ड ऑन एडी करंट्स। वो ब्रेक्स किस तरह वर्क करती हैं जी, देखो स्ट्रॉन्ग इलैक्ट्रोमैग्नेट्स आर सिचुएटेड अबव द रेल्स इन सम इलैक्ट्रिकली पावर्ड ट्रेनस, कि इलैक्ट्रिकली पावर्ड ट्रेनस है कि असीं उहदे विच स्विच दबा के ते इलैक्ट्रोमैग्नेट्स ऑन कर सकते हैं। तो उन्होंने कित्थे लगाया जाता है जी, जस्ट अबव द रेल, कि स्ट्रॉन्ग इलैक्ट्रोमैग्नेट्स आर सिचुएटेड अबव द रेल्स। जो लाइन है ना थल्ले वो भी आयरन वर्गे मटीरियल दी बनी है जी, मैटल है, ठीक है। कि वैन इलैक्ट्रोमैग्नेट्स आर एक्टिवेटेड, जो असीं उन्होंने एक्टिवेट करते हैं एडी करंट्स आर इंड्यूस्ड इन द रेल। हुण वो ट्रेन के मोशन करके प्रोड्यूस हो रही हैं जी, क्योंकि वो चेंज हो रहा है उस दे नाल लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स, तो उसके मोशन को अपोज करती है जी। जो एडी करंट्स है, जो EMF डिवेलप हो रही है, वो जो एडी करंट्स है वो ट्रेन के मोशन को अपोज करते हैं, ठीक है। तो इत्थे देखो होर बहुत जबरदस्त चीज़ है जी कि नो मकैनिकल लिंकेज, कि जिवें अपनी बाइक च हुंदा ना, जो असीं दबदे हाँ तो नाल उहदे नाल ब्रेक लैदर टच करते हैं या डिस्क टच करती है तो चीज़ रुकती है, आपको झटका भी लगता है। इत्थे क्योंकि कोई टच ही नहीं है, देखो, ठीक है ना, इसलिए ब्रेकिंग इफैक्ट जिहड़ा वो बड़ा समूथ हुंदा है। तुसीं देखो ट्रेन दे विच तुहानूं झटका नहीं लगेगा ब्रेकिंग एक्शन ते, बड़ी समूथली ब्रेक लगती है जी ट्रेन की, ठीक है ना। बस की तरह नहीं, बस दे विच सडन ब्रेक लगी तो जाके सारा जिहड़ा झटका है वो एकदम लगता है, ठीक है ना, ब्रेक एकदम लगती है। तो इहदे विच ब्रेकिंग एक्शन बड़ा समूथ है, ठीक है ना। चलो जो लॉ ऑफ इनर्शिया करके जो इफैक्ट होना वो तो होएगा ही, बट स्मूथनेस है, ठीक है जी। तो गल समझ लगी जी, हो की रहा है कि स्ट्रॉन्ग इलैक्ट्रोमैग्नेट सिचुएट किए हुए है जी, सिचुएटेड है कि स्ट्रॉन्ग इलैक्ट्रोमैग्नेट्स आर सिचुएटेड अबव द रेल्स, ठीक है। व्हेन इलैक्ट्रोमैग्नेट्स आर एक्टिवेटेड एडी करंट्स आर इंड्यूस्ड विच अपोजेस द मोशन ऑफ ट्रेन, ठीक है जी। तो मैकेनिकल लिंकेज नहीं है, इस करके ब्रेकिंग एक्शन जो है बहुत स्मूथ है। दूसरा जी इलैक्ट्रोमैग्नेटिक डैंपिंग। इलैक्ट्रोमैग्नेटिक डैंपिंग में तो याद होएगा कि मूविंग कोयल गलवैनोमीटर के विच असीं एक डैड बीट गलवैनोमीटर की गल की सी, याद है जी, डैड बीट गलवैनोमीटर। तो इसनूं तुसीं डैंपिंग इफैक्ट कह लो या डैड बीट गलवैनोमीटर, इसकी एक एप्लीकेशन कह लो कि उहदे विच दस्सिया सी कि कोर है, ठीक है। तो कोर दे नाल पॉइंटर अटैचड है, तो जो पॉइंटर मूव करता है तो वो
ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਰੁਕਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਪॉइंटर, ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ 0 ਤੇ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਗਿਆ ਜੀ ਪॉइंटर, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਹਿਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ठीक है, तो रीडिंग लैनी डिफिकल्ट हो जाती है जी, इत्थे रुकेगा, इत्थे रुकेगा कि इत्थे रुकेगा, क्योंकि देखो जी कॉयल ने रोटेट करना है, तो कॉयल नूं असीं बाउंड करते हैं एक नॉन मैगनैटिक मटीरियल के उपर। ठीक है, नॉन मैगनैटिक असीं तां लै रहे हैं क्योंकि मैगनैटिक फील्ड नूं वो इंटरैक्ट ना करे, सिर्फ उहदे विच एडी करंट्स डिवेलप होण। जदों एडी करंट्स डिवेलप होणगे तो पॉइंटर उत्थे जाके थोड़े टाइम लिए बस इस तरह करेगा तो जल्दी रुक जाएगा, मतलब डैंपिंग होएगी। ठीक है ना, तो एडी करंट्स करके तो उनका मोशन डैम्प्ड हो जाएगा, तो उनके जो बीट्स प्रोड्यूस हो रही हैं, ऑसिलेशंस वो की हो जाएगियाँ, डैड हो जाएगियाँ। तो डैड बीट गैल्वेनोमीटर इसनूं क्या जाता है। ठीक है, इत्थे गैल्वेनोमीटर की गल की गई है जी। देखो सर्टन गैल्वेनोमीटर्स हैव अ फिक्स्ड कोर मेड ऑफ नॉन मैगनैटिक मटीरियल। व्हेन द कॉयल oscillates, the eddy currents generated in the core opposes the motion and brings the coil to rest quickly, कि coil जी जल्दी रेस्ट च आ जाती है। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चंस है ये तुहानूं अलग अलग भी पूछे जा सकते हैं कि वट आर डेड बीट गैल्वेनोमीटर्स, ठीक है, वट आर मैग्नेटिक ब्रेक्स, या सिंपली ये पूछा जा सकता है कि गिव एडवांटेजेस ऑफ एडी करंट्स और यूजेस ऑफ एडी करंट्स और एप्लीकेशंस ऑफ एडी करंट्स। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी, वेरी इंपॉर्टेंट। एडी करंट वाला टॉपिक ही बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन तो पूछा ही जाता है। वट आर एडी करंट्स, गिवन रिलेटेड एक्सपेरीमेंट, या ये पूछा जाता है कि वट आर एडी करंट्स, हाउ टू मिनिमाइज एडी करंट्स, या इस तरह पूछा जाता है कि वट आर एडी करंट्स, डिस्कस टू एप्लीकेशंस ऑफ एडी करंट्स। एक एप्लीकेशन असीं होर डिस्कस करते हैं जी, देखो बहुत इंपॉर्टेंट। तो एप्लीकेशन है जी इंडक्शन फरनैस। फरनैस की होंगी है जी, देखो सानू पता है जी फरनैस एक हाई टैंपरेचर प्रोड्यूस करने वास्ते डिवाइस जो है यूज़ किया जाता, जिन्होंने पंजाबी च भट्ठी कह दें आपां। ठीक है, तो की होंदा जी, बिल्कुल सिंपल जी चीज़ है कि एक असी मैटल नूं मैल्ट करके ना अलॉय बनाना है। कुछ मैटल्स असी मैल्ट करनी है तो अलॉय बनाना है जी, मिक्सचर ऑफ मैटल्स। तो उन्होंने मैटल्स नूं मैल्ट करना बड़ा डिफिकल्ट है जी, बड़े हाई टैंपरेचर ते मैटल्स का मैल्टिंग पॉइंट बड़ा हाई होंदा है। ठीक है, तो की किया जाता जी, जिवें ये मैटल है, इसनूं असीं मैल्ट करना है, तो इहदे राउंड मतलब इसनूं एक सोलेनोइड के अंदर रखा जाता है। ठीक है, कोर ऑफ मैनी टर्न्स, तो इहदे विचों हाई फ्रिक्वेंसी ऑल्टरनेटिंग करंट पास करवाया जाता है। मतलब इस दे नाल लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स बहुत फास्टर रेट पर चेंज करती है अंदरले दे नाल, ते इहदे विच हीट प्रोड्यूस होंदी है तो मैल्ट हो जाती है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल जा एक्सपेरीमेंट है जी कि फरनैस का काम होंदा है जी भी हाई टैंपरेचर प्रोड्यूस करना। तो इंडक्शन फरनैस कैन बी यूज टू प्रोड्यूस हाई टैंपरेचर, कादे लई जी, टू प्रिपेयर अलॉयज बाय मेल्टिंग द मैटल्स। तो मेन जो कॉन्सैप्ट इहदे विच की है जी कि हाई फ्रिक्वेंसी ऑल्टरनेटिंग करंट इज पासड थ्रू द कॉयल, कि जिहड़ी ये कॉयल है, ठीक है, विच सराउंड्स द मैटल टू बी मेल्टेड। ठीक है, द एडी करंट्स जनरेटेड इन द मेटल प्रोड्यूस हाई टैंपरेचर सफिशेंट टू मेल्ट द मेटल। ठीक है जी, कई बार बच्चे होंगे ना जी जो घट तो घट लिखना चाहते हैं, तो मिनीमम देखो जी मैं वो भी मार्क कर रहा कि जो तुसी मिनीमम उत्थे दसना है जी। फरनैस बारे ना दसो, ठीक है जी, फरनैस बारे सारिਆਂ ਨੂੰ पता होंदा है कि वट इज़ फरनैस, नो नीड टू एक्सप्लेन कि इंडक्शन फरनैस कैन बी यूज टू प्रोड्यूस द हाई टेंपरेचर। अ हाई फ्रिक्वेंसी अल्टरनेटिंग करंट इज पास थ्रू द कॉयल विच सराउंड्स द मैटल टू बी मेल्टेड, कि मैटल टू बी मेल्टेड की गल भी विच आ गई। ठीक है, एडी करंट्स आर जनरेटेड इन द मैटल्स टू प्रोड्यूस हाई टैंपरेचर सफिशेंट टू मेल्ट द मैटल। क्लीयर, तो ये इंडक्शन फरनैस है जी। ठीक है, एक एप्लीकेशन मैं तुहाडे लई छड्ड रहा जी, ये तुसीं अपने आप करनी है जी, इलैक्ट्रिक पावर मीटर्स। ठीक है जी, इसनूं तुसीं कर सकते हो बड़ी सिंपली। उस तो अगे जी इलैक्ट्रोमैगनैटिक डैंपिंग नाल रिलेटेड एक एक्सपैरीमेंट है जी, बड़ा जबरदस्त एक्सपैरीमेंट है। जे तुसीं इसनूं करके देखो कि इहदे विच एक PVC पाइप ली गई है, ठीक है, तो एक एलूमीनीयम की पाइप ली गई है। दोनों पाइप्स दी लेंथ सेम है। ठीक है, इंटरनल डायामीटर सेम है पाइप्स दे, मतलब इस तरह दी पाइप्स है, दोनों की लेंथ सेम है जी, तो दोनों का डायामीटर सेम है जी।
ठीक है जी। एक PVC दी है, एक मैटल दी है, मतलब एलूमीनीयम दी है। ठीक है जी। दोनों के विचों एक मैगनेट ड्रॉप किया जाता है, सिलेंड्रिकल मैगनेट ड्रॉप किया जाता है जी। हुण जिहड़ी तां PVC है जी, ये एक नॉन मैगनैटिक मटीरियल है। ठीक है। जो इहदे विचों असीं ड्रॉप करते हैं तो उन्ने टाइम 'च पहुँचदा थल्ले जिन्ने टाइम 'च जे ये पाइप ना होंदी तां। जिवें असीं नॉर्मली किसी चीज़ नूं छड्ड दिंदे आ तो उन्ने ही टाइम 'च नीचे पहुँच जाता, क्योंकि इहदे विच मैगनैटिक फील्ड का कोई इफैक्ट नहीं। पर जो इहदे विचों मैगनेट नूं छड्डदे आ तो इहदे अंदर एडी करंट्स डिवेलप होंदे आ, जिहड़े इहदे मोशन नूं अपोज करदे आ। जिन्ना चिर नीचे आंदी है तो उस नीचे आने नूं अपोज करदे आ, ਜਦੋਂ इन्हें तो दूर जा रहा होंदा मैगनेट तो उस चीज़ को अपोज करते हैं। ठीक है ना। तो इनदे विच मैगनेट नूं पास करन ते मैगनेट ने टच नहीं करना। देखो राजे किसी भी आसे पासे नूं मैगनेट का डायमीटर साइज़ बहुत छोटा है, मैगनेट ने इस दी दीवारां नूं टच नहीं करना। बट जिहड़े एडी करंट्स डिवेलप होंदे इहदे मोशन नूं अपोज करते हैं। तुहानूं पता लगे कि ट्रेन 'च ब्रेक किवें लगदी है, तुसीं इसनूं रिलेट कर सकते हो, रिटार्डिंग फोर्स लगता है। तो इहदे विच रैलेटिवली लॉन्ग टाइम लगता है, तुहानूं देखण तो ही पता लग जाएगा। ठीक है। मैं इस दे नाल लिंक्ड एक वीडियो भी अटैच करूँगा तुहाडे नाल, तुसीं वो वीडियो भी देखिया जी। बड़ा वधिया वीडियो है, बड़ा इंटरस्टिंग वीडियो है कि जिहदे विच एक्सपैरीमेंट करके दिखाया गया है। तो तुसीं आप उहनूं देख के बड़ा तुहानूं क्लीयर कट इसका जो एडी करंट्स का एक्शन है वो समझ आएगा। ठीक है। तो ट्रेन दे विच ब्रेक्स किस तरह लगते हैं ये भी समझ आएगा। ठीक है जी। तो आई होप कि तुहानूं ये टॉपिक जिहड़ा वो समझ लग गया होएगा। बड़ा इंटरस्टिंग टॉपिक है। ठीक है। सो ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे।